Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. So for nomenclature of organic compound, if we will draw this structure, it means that each corner have one carbon, that 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These all 6 dots are like carbon, and one carbon is attached with Cl, suppose. Then we will write name of this compound is cyclohexane. This is cyclohexane, and chlorine is also attached. So we will write that chlorocyclohexane. Okay, hexane because hex means 6 carbon, ane means single bond, and cyclo means cyclic structure, and there is chlorine, so it will be chlorocyclohexane. Next example is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and there is one branch also. So each corner is carbon means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total number of carbon is 7. Then longest chain will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 6 carbon, and there is one branch, one carbon branch means it will be methyl. So you will write 1, 2, 3, 4, 5 and 6 means 3 methyl hexane. Hex means 6 carbon, N means single bond. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 3 methyl hexane. Next example is suppose 1, 2, 3, 4, 5, and there is one bromine. So it is also bond line structure. There is carbon 1, 2, 3, 4 and 5. And third position from here also 1, 2, 3, and from here also 1, 2, 3 and 4, 5. Total 5 carbons are there. Okay, and this is bromine at third carbon. So you will write 3 bromo, and 5 carbon means pent, and all are single bonds, so it is 3 bromo pentane. Okay, next is suppose we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and there is double bond at this position. So we'll write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 means at third position there is double bond. So we will write for 7 carbon hept. Okay, and third position there is double bond. So hept 3 ene. Next is 1, 2, 3, 4. If there is triple bond and there is OH bond, suppose, then we will write that each corner is carbon and there is triple bond also. Okay, triple bond means that 1, 2, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3. At third position there is alcohol, and at first position there is triple bond. Total number of carbon is 5. So we will write 5 carbon means pent, 1 ion, 3 all. Pent 1 ion, 3 all. Okay. Next is this is cyclohexane, and these are branches. Okay. And how many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So how you will write name of this compound? That this is CH, this is CH3, and this is CH3. This is cyclohexane, already we had discussed. Okay, now it is methane prop means propyl group. Like one carbon होता है मिथाइल और ये 3 कार्बन होगा प्रोपाइल. अब प्रोपाइल ऐसे भी हो सकता था,
ओके, यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 एंड 3 मीन्स 1 2 एंड 3। तो इसे हम बोलेंगे प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर इससे कंडीशन डिफरेंट है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है कि ये जो प्रोपाइल है ये नॉर्मल चेन है और यहाँ पर ये ब्रांच चेन है। ओके, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ 2 की होगी और इस पर एक मिथाइल लगा है। तो ऐसी कंडीशन को जब एंड से पहले एक ब्रांच होते हैं इसे हम आइसो बोलते हैं। तो हम इसे आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं इस ब्रांच का नाम। ओके, आइसो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब बात यह कि जो हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी, तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या हैं। नॉमेनक्लेचर में अब मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिक के साथ आपको बताऊंगा। नॉमेनक्लेचर में आपको रूल्स पढ़ने हैं कि फर्स्ट जो होता है वो आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करना होता है। सेकंड होता है आपको कि फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच है अगर कहीं पर, तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर देना है। ओके, ऐसी नंबरिंग करनी है। वाइल नंबरिंग यू हैव टू चूज़ दैट कार्बन हैव फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दैट शुड हैव मिनिमम नंबर, यानी उसे हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसे हमने बात की थी अभी, जैसे यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रोमीन लगा है तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे यहाँ से ब्रोमीन आ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग गलत है। हमें इधर से स्टार्ट करना है 1 2, ताकि इस कार्बन को, जिससे इस कार्बन को सेकेंड नंबर मिल रहा है। ओके, मीन्स 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। ओके, दिस इज करेक्ट। सो थर्ड वन इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी नाम आप ले रहे हैं, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों लगाए तो ब्रोमीन पहले बी आता है और क्लोरीन का सी आता है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में आपको ब्रोमीन पहले बोलना है, क्लोरीन बाद में बोलना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज़ इथाइल एंड मिथाइल, ये दोनों ब्रांच हैं। तो इथाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इथाइल पहले बोलेंगे और मिथाइल बाद में बोलेंगे। और कभी भी ब्रांच जब लगी होगी तो ब्रांच को हमें देखना है कि उससे मिनिमम नंबर मिले। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पर ब्रांच की बात करें ऐसे। ओके, ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सपोज तो आपको यहाँ लिखना है CH3 CH3 CH3, ईच कॉर्नर इज कार्बन, ये अब आप समझ गए होंगे। फिर ये CH2, ये CH2 और ये C होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन में। अब यहाँ पर देखिए हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। ओके, यानी टोटल 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। और 1 2 3 4 आप इसे भी 5 बोल सकते हैं, इसे भी 5 बोल सकते हैं। कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही हैं। यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5। कहीं से भी आप जाएंगे तो आपको 5 कार्बन की चेन मिलेगी। तो आपको इनमें से कोई भी एक चूज़ करना है, ठीक है। जैसे हमने सपोज़ इस चेन को चूज़ कर लिया, ये पेरेंट चेन मान लिया इसे। ओके, तो अब हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, तो फर्स्ट रूल था क्या, लॉन्गेस्ट चेन। ओके, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। सेकेंड रूल है अब नंबरिंग करते वक्त हमें ध्यान देना है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे तो ये 4 पे ब्रांचेज आ रही हैं दोनों। और हमें अगर इधर से स्टार्ट करना है 1 2 तो 2 पे आ रहा है, यानी कि मिनिमम नंबर रूल फॉलो करना है हमें। तो मिनिमम नंबर क्या आ रहा है, 2 वाला। ओके, तो सेकंड पे हम मानेंगे इसे। तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो दोनों की पोजीशन और नंबर, तो याद रखिए पहले हम लिखते हैं पोजीशन, ओके, और फिर हम लिखते हैं नंबर, यानी नंबर का मतलब कितने हैं और पोजीशन का मतलब कहाँ है। ओके, वेयर एंड हाउ मच, यानी किस पोजीशन पर अटैच है और कितने ज़्यादा हैं, 2 हैं 3 हैं तो डाई ट्राई ऐसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर मिथाइल इथाइल 2 तरह के तो ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पर थर्ड रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसका नाम लिखते हैं अब स्टूडेंट्स पोजीशन 2 2, यानी दोनों ही ब्रांचेस की पोजीशन 2 2 है। और टोटल कितने हैं, 2, इसलिए डाई। और हैं क्या, दोनों ही एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही मिथाइल हैं, 2 2 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन मीन्स पेंटेन। ओके,
पेंट कार्बन मीन्स 5 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, इसलिए पेंटेन। तो 2,2-डाईमिथाइल पेंटेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। अब आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। जैसे अब हम एग्जाम्पल ऐसे बात करें, यहाँ पर ये लग गया तो इधर से आप करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपको पता है कि थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड कार्बन पर। और अगर इधर से करें तो 1 2, देखिए तो ये सेकंड पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आ गया, ओके। तो ये सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। तो हमें नंबरिंग करना है इधर से 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 5 कार्बन के लिखेंगे पेंट, फिर किस पोजीशन पे है, 2 पर है, ठीक है। और क्या है, इन क्या होता है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पेंट 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ किया जाता है, ओके। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो हम इसे बोलते पेंट 2 आइन, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात कर चुके हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की, और नॉमेनक्लेचर रूल्स के अकॉर्डिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ओके। एक और चीज़ होती है यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमें मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है देन इट इज़ CH4। इस CH4 को आप ऐसे लिखेंगे देन इट इज़ नॉट करेक्ट। इसे हम ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, ये बोलता है टेट्राहेड्रल शेप, ओके। ऐसे होगा तो ये स्क्वायर प्लानर जैसा लिख रहा है, देखिए इसे स्क्वायर प्लानर बोलते हैं, ओके। ये टेट्राहेड्रल है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है टेट्राहेड्रल। अब इस मीथेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस कार्बन को हम ऐसे दिखाएं, एक बॉन्ड सिंगल, एक और सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करें और एक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसे बोलते हैं 3D। 3D में दिखाने का मतलब है कि जैसे आप किसी, आपके पास पेन होगा, ओके। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप पेन लेके कर सकते हैं कि आप अपने हाथ में एक पेन लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर एक पेन को एक डायरेक्शन में रखिए, दूसरे पेन को इस डायरेक्शन में रखिए और तीसरे पेन को इस डायरेक्शन में रखिए। अब देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, 3D का मतलब मैं कह रहा हूँ ये आपको पिरामिड जैसा ये दिखना चाहिए, ये सब। और ये इनके ऊपर टॉप पर, ये मिडिल में होगा सेंटर पर, और ये तीनों ऐसे, ठीक है। तो जब आप ऊपर से इसे देखेंगे तो ये वाली पेन का टिप ये है, और ये ऐसे एक पेन दिखेगी ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इस पेन का टिप यहाँ पर है और ये जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगा, ओके स्टूडेंट्स। तो टेट्राहेड्रल में जब हम इसे शो करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं HHH, ओके ऐसे। तो ये क्या है, पिरामिड जैसे, और ये इसके टॉप पर है। तो ये दिखाने का मतलब होता है कि जब हम 2D में ये चीज़ दिखा रहे हैं तो हम 3D स्ट्रक्चर को यहाँ पर कैसे शो करें। तो सॉलिड लाइन, ये होता है सॉलिड लाइन, ओके। सॉलिड लाइन का मतलब होता है, सॉलिड वेज मीन्स बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी आप ऑब्जर्वर हैं, आप इसे ऑब्जर्व करें तो ये आपकी तरफ है, इसलिए ये डार्क दिखाया जा रहा है, सॉलिड दिखाया जा रहा है कि आपकी तरफ है, तो क्लोज दिख रहा है। ये डैश लाइन से दिखाया जा रहा है यानी कि ये आपसे दूर है, ओके। ये डैश लाइन का मतलब आपसे अवे है, दूर है। देन वी विल राइट दैट डैश वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये बॉन्ड ऑब्जर्वर जो आप देख रहे हैं इधर से तो वो आपसे दूर है, ओके। इट इज़ नियर बाई एंड इट इज़ फॉर अवे। और ये बॉन्ड्स जो दोनों हैं 1 एंड 2, ये दोनों ही इसी प्लेन में है, यानी जैसे आप बोर्ड पे दिखा रहे हैं, इस बोर्ड पे हम ये चीज़ दिखा रहे हैं तो ये इसके प्लेन के साइड में है, ठीक है, इसी प्लेन में है। और ये इस प्लेन के पीछे की तरफ होगा ये बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस प्लेन में बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे हम अगर अपने हाथ से आप इसे ट्राई करना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर ऐसे करेंगे, ठीक है, हम आप अपना ऐसे करेंगे, और एक जो आपकी सेकंड फिंगर है वो आप दूसरी तरफ करेंगे। तो इस तरह से बाकी 2 फिंगर्स को आप अंदर ही रखेंगे अपनी मुट्ठी में, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि आपकी फिंगर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होनी चाहिए ऐसे, ओके।
मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी तो देखिए ये भी ऐसे डैश लाइन से मैं दिखा रहा हूँ कि ये तीनों क्या पिरामिड जैसे हो जाते हैं और इसके ऊपर एक बॉन्ड, तो ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई वैसी होती है। ओके, इट इज़ टेट्राहेड्रल। तो ये प्लेन में ये दो बॉन्ड होते हैं और एक प्लेन के पीछे की तरफ और एक प्लेन के आगे की तरफ। ओके, यानी ये एक प्लेन मान लें इस बोर्ड को। तो ये 3D स्ट्रक्चर हम आपको वैसे वीडियो भी सेंड कर दूंगा मैं आपको ये समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।